breast cancer, cervical cancer, preventive healthcare, women's health. These are some of the topics that we are discussing today. Joining me is Dr. Beena Mishra. She is a consulting obstetrician and a gynecologist at Mishra Nursing Home, and she's also the director of Rhythm Test Tube Baby Center. Welcome, Dr. Beena. Thank you. What do you think are some of the most pressing issues in women's health today? Woman is not taking care of herself only, because woman is the main enemy of herself, because she's taking care of her family, her patient, her relatives, but she's not taking care of herself. If she is having pain, for example, if she is having headache, mild headache or mild fever, oh, it's okay, no problem. But if her patient or her child or her husband or her father is suffering from mild fever, she's taking so much of care. Oh, he's suffering from fever. So that is the main reason. The woman is herself is an enemy of own, not anyone else. No anyone else. She's busy taking care of everybody else but herself. I think, am I right? Yes, to a large extent, yes. I want to get into menstruation. There are cases seen these days where there's an onset of early menstruation in young child as young as 8 years. And then on the flip side, we also see early menopause. Yeah, this is basically due to the environmental changes. And there is a exposure of social media and junk food and pollution. Everything is responsible for women hormonal status. Okay. And there is no outdoor game. Child are busy in mobile and laptop only, not going to field to play any outdoor game like basketball, kho-kho or kabaddi. What previously we all played. These days, the kids are not interested in all these things. That's why this is the most important reason. And other is Zomato, junk food. Order Zomato or Swiggy and momos, burger, pizza, and cold drinks. These all are basic reason for this early menstrual cycle or PCO or every hormonal changes to the woman. And this again is the reason why we are seeing so much of spike in PCOS lately, correct? Because of this only, PCOS, there is a lots of hormonal changes, and due to hormonal changes is due to this lifestyle and due to the stress, because these days the play school is started from 2 years only. Yes. 2 years and child get so much burden of I have to pass this exam, I have to clear this exam. All this stress is going through on this phase. That's why the stress is also one of the most important reason for these hormonal changes, especially in the female. I understand the lifestyle issue. Yeah, lifestyle is very important. Yes. And and the environmental toxins. You said social media. So social media, cell phones and laptops and everything in general, too much of use of such? Too much of use of this, and everything there's so much, everything is on phone only. There's no need of any CD or any pen drive or any TV. Everything is on phone. Everything is on phone only. There is porn videos also. There is some girls look, I'm very smart. I take drinks, or if I goes to parties, these are all kind of smartness. These are not right thing. A lot of changes in lifestyle, yes. And because of overexposure of social media, phone, and all those things are the reasons why we see so much of cases of PCOS or early menstruation or early onset, early menopause, so much of hormonal changes. That's great. Now let's come to hygiene in women's health. We talk about hygiene. Yes. The hygienes that we should know about, and how do we maintain hygiene? Actually, about menstrual cycle, I'm running one project also, and I'm doing one project in this menstrual cycle and menstrual hygiene. और मैं camps भी करती हूँ अलग-अलग जाके कामाख्या के नाम से in small places. Because क्या है कि जो menstruation, जो उनको ये पता नहीं होता है कि इसमें करना क्या है. They are using bad clothes, dirty clothes, but this is not right. आजकल जो सैनिटरी पैड है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ₹1 का एक पैड, तो वो प्रधानमंत्री योजना में जो उनकी शॉप्स हैं, अगर जो कोई भी गांव का है और उसको पैड यूज करना है तो एक ₹10 के पैकेट का आता है, और ₹10 के पैकेट में 10 पैड होते हैं, यानी कि ₹1 1 पैड। और गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं, लेकिन आज भी गाँव के लोग नहीं यूज करते हैं, या बहुत छोटी छोटी जगह पे उनको नॉलेज नहीं होता है, वही पुराना वो कपड़ा और अच्छे से उसको वॉश नहीं करना और कहीं भी फेंक देना। तो ऑल दीज आर रीजन फॉर बैड वुमेन हेल्थ। दूसरा क्या होता है कि अगर जो पैड यूज कर रहे हैं तो बहुत बारी भूल जाते हैं, अरे चेंज नहीं करना है, बट दिस इज नॉट राइट। आपका चाहे जो भी
कंटिन्यू एवरी 3 और 4 आवर में पैड चेंज करना ही करना है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दूसरा डिस्पोजेबल, बिकॉज जितनी भी यूटीआई है लेटर ऑन देयर इज अगर जो कंटिन्यू अगर जो पैड नहीं चेंज करते हैं लॉन्ग टाइम अगर जो पैड यूज करते हैं तो लेटर ऑन इट विल लीड टू ब्लैडर कैंसर और सर्वाइकल कैंसर. ऑल दिस thing may happen if child not taking care of at this age. और पैड को भी डिस्पोज कहीं भी फेंक देते हैं. अगर जो आप कभी भी नॉर्मल अगर जो पब्लिक टॉयलेट्स में जाओ तो डस्टबिन जो होते ही है, आप ऐसे खुला पैड जो ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप इन्फेक्शन अपने को भी दे रहे हो दूसरों को भी दे रहे हो. तो प्रॉपर डिस्पोजल प्रॉपर रैप करके अच्छे से डस्टबिन में डालना. आजकल तो हर जगह अच्छे से रैपिंग पेपर वगैरह रहते हैं, टिश्यू पेपर्स रहते हैं, बट उसको यूज करना है. अच्छा, गाँव वगैरह में क्या रहता है कि या छोटी जगह पे भी या छोटे जो सुलभ शौचालय नॉल होता है उसमें भी ऐसे ही फेंक देते हैं. बट ये चीजें उनको हम लोग बताते हैं जा जाके कि ऐसा नहीं, ऐसे करना चाहिए. प्रॉपरली रैप, अगर जो घर में भी है तो प्रॉपरली रैप करके प्रॉपर डस्टबिन में डालना है. मॉर्निंग में आपका गाड़ी आती है उसको आप दे दो, नहीं आती है तो प्रॉपर एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे पूरा कूड़ा होता है वहां पे डंप करो, कहीं भी फेंकना नहीं है. तो ये सब चीजें अगर जो पुअर हाइजीन इस टाइम पे अगर जो हाइजीन मेंटेन बहुत अभी भी मिथ है, अच्छे अच्छे लोगों में भी मिथ है कि क्लीननेस नहीं रखते हैं, कैसे भी कपड़े पहनते हैं, बट दिस इज नॉट गुड. आपको क्लीन रहना है. जो अपने जो अंडरगारमेंट्स वगैरह प्रॉपर वॉश करके धूप में सुखाना है ताकि उसमें जो भी बैक्टीरिया वायरस है जो धूप में रखते हैं तो वो मर जाएंगे. तो ये सब चीजें अगर जो इनिशियल स्टेज में ही वुमेन लड़की करती है तो आगे चल के बहुत सारी बीमारियों से वो बच सकती है. You mentioned Pradhan Mantri provision for sanitary pads. What is the name of the program again? Actually, हमारा लोकल प्रोग्राम था, मैंने स्टार्ट किया था कामाख्या करके. कामाख्या, okay. ये जैसा मतलब हमारा केटी ग्रुप है वो मैंने स्टार्ट किया था कि कामाख्या उससे, लेकिन अभी मैंने जो ऑल इंडिया लिनेस क्लब है उसका भी मैंने नाम दे दिया. तो वी आर डूइंग ऑल द प्रोजेक्ट लाइक अवेयरनेस इन द सर्वाइकल कैंसर, breast cancer awareness, और how to prevent all these things, and sanitary pad distribution. और sanitary pad distribution के साथ साथ उनको knowledge भी देना कि what is it, ये बीमारी नहीं है कोई, ये हेल्दी चीज है, ऐसा ऐसा करना है आप लोगों को. तो इससे काफी फर्क भी पड़ा, लोगों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं ये बैड थिंग नहीं है. जैसे एक चीज और है कि गर्ल्स के साथ साथ बॉयज को भी हम एजुकेट करते हैं कि ऐसा है, ये नॉर्मल है, आपको इसका मजाक नहीं उड़ाना है. और अगर जो कभी लड़की ऐसे फंस गई तो आपको उसको हेल्प भी करनी है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे पब्लिक प्लेस हो, चाहे घर हो. ये सब चीजें भी इनडायरेक्टली कर रहे हैं. Yes. आप मेंशन किया था लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पैड वेयर करने से इन्फेक्शंस हो जाता है. फॉर हाउ लॉन्ग इज द लॉन्ग? हाउ लॉन्ग usually जो normal time है, what is your normal time is you have to change the pad every 3 to 4 hours. Okay. Normally, but most of the girls, most of the people, they forgot to change. Yes. Till 8 hours, 9 hours, 12 hours, but this is not good. Actually, ये है कि government is already doing best for the public. Yes. क्योंकि sanitary pad distribution कई सारी public programs है, they are distributing free of cost. ये उनको aware करना पड़ता है कि भाई नहीं, आपको ऐसे नहीं, ऐसे करना है. Yes, and these programs are across India, correct? Yes. Okay. Coming to age, when a woman reaches a certain age, there are many health complications that come up. Actually, जो मैंने बताया ना, actually जो गर्ल्स का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है. प्रॉब्लम मतलब शी हैज टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ जैसे ही मेनार्के स्टार्ट होता है. एंड द रिप्रोडक्टिव एज इज वेरी इंपॉर्टेंट. Menarche is very important because she learned how to take care of herself, how to prevent diseases, like she has to take care of her menstrual hygiene, health, and all these are very important things during this age. And after that she enter into the young age, मतलब शादी हो जाती है, सब चीजें हो जाती हैं. एक्चुअली ये जो टाइम पीरियड है, जो यंग वाला टाइम पीरियड है, अगर जो वुमेन ने इस टाइम पे अपने को नहीं ध्यान दिया, सब चीजें नहीं देखी, तो आफ्टर 40 शी विल क्रिएट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आफ्टर 40. लाइक क्योंकि हार्मोन्स तो सब अब डाउन हो रहे हैं. लोग जो भी चीजें जो हमने शुरू में की हैं वो उसका रिजल्ट मिलता है आफ्टर 40. लाइक बोन वीक होने लगता है अगर जो प्रॉपर कैल्शियम वगैरह नहीं लिया, अगर जो आपने प्रॉपर चीजें नहीं, अपने न्यूट्रिशन अच्छे से फॉलो नहीं किया, तो धीरे धीरे चीजें आपकी बीमारियां शुरू हो जाती हैं. बहुत सारी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सर्वाइकल कैंसर का भी जो एज है वो भी यही टाइम है. भाई स्टार्ट तो वो शुरू से हो रहा है कि भाई शुरू में आपने हाइजीन नहीं मेंटेन किया, सब चीजें नहीं की, और वो जो रिजल्ट देता है वो 40 के बाद ज्यादा देना शुरू कर देता है. जो भी ब्रेस्ट कैंसर है, जो इंडिया में बहुत कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ऑल दीज आर एक्चुअली अगर जो हम शुरू से ही टेकिंग केयर करेंगे तो हमें आगे ये रिजल्ट, तो आगे प्रॉब्लम नहीं. We need to make more noise and educate more people about how a woman should take care of herself from the time she's young. Yes. Okay. There are so many gynecological problems that we hear about. What are some of them that can be prevented? Yes, everything is prevented. I'm starting from infection, vaginal infection.
Yes, ma'am. infection or urinary tract infection. These are very commonest infection or commonest disease in women, like pelvic inflammatory disease, urinary tract infection. If गर्ल जो है, अगर जो शुरू में ही उसने अपने आप को क्लीनली जैसे वॉश अच्छे से करते रहना है और अपने अंडरगारमेंट्स को अच्छे से वॉश करके सुखाना है, तो बहुत सारी चीजें तो यही प्रिवेंट हो जाएंगी। फिर पानी बराबर पीना है, सारे न्यूट्रिशंस लाइक हेल्दी डाइट से आपका स्ट्रेस फ्री आप रहोगे। अच्छी डाइट लोगे तो आपका ओबेसिटी, जो आजकल गर्ल्स में बहुत ही कॉमन है, लाइक हाइपोथायराइडिज्म एंड ऑल, तो अगर जो हेल्दी डाइट रहेगी तो ओबेसिटी भी नहीं होगी। एंड ड्यू टू ओबेसिटी देयर इज मोस्ट ऑफ द डिजीज लाइक डायबिटिक मेलाइटस, हाइपरटेंशन, पीसीओ, ऑल दिस थिंग, इरेगुलर साइकिल, और ये सब प्रिवेंट कर सकते हैं कब? जब हम थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे शुरू से। हमने गेम्स में, स्पोर्ट्स में ज्यादा ध्यान दिया, हमने अपनी डाइट्स प्रॉपर की, हमने अपने हेल्थ को हाइजीन मेंटेन किया। और एक कैंसर है, मतलब सारे वैक्सीनेशन अगर जो प्रॉपरली, वो तो रहते ही बच्चे में, लेकिन गर्ल्स की, स्पेशली वुमेन के लिए एक कैंसर है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीन से, वो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है वो 9 इयर्स से स्टार्ट हो जाती है। अगर जो 9 ईयर्स से हमने बच्चियों को लगाना शुरू कर दिया, 9 इयर्स टू 15 इयर्स में अगर जो लगाते हैं तो सिर्फ 2 डोज लगता है सर्वाइकल वैक्सीन का, जिसमें से जो मेन ट्रेट है एचपीवी, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, वो कवर हो जाता है, जो थोड़ा सा रीजनेबल है। बाकी हैं वैक्सीन और भी आ रहे हैं, काफी मल्टी वेरिएंट के भी आते हैं, लेकिन वो थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। लेकिन जो हमें जो चाहिए कि भाई मेन ट्रेट हमारी कवर हो जाए, तो वो भी रीजनेबल रेट पे आता है। और 9 ईयर्स से स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ 2 ही डोज लगता है 15 ईयर्स, और 15 ईयर्स के बाद टिल रिप्रोडक्टिव एज जो भी है 40 तक लगाते हैं, 40, तो वो 3 डोज में जाता है। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर है, ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं ड्यू टू दिस वैक्सीन। प्रॉपर स्क्रीनिंग, लाइक अगर जो सर्वाइकल कैंसर का देखते हैं तो प्रॉपर अगर जो हम पैप्समियर अगर जो रूटीनली कराते रहते हैं, साल में, 2 साल में, 3 साल, जैसे जैसे डॉक्टर एडवाइस करता है कि आपका पैप्समियर है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर एचपीवी के लिए भेजता है या बायोप्सी करता है, तो इस चीज से हम प्रिवेंट हो सकते हैं कि फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर ना हो। और सेम चीज होता है कि ब्रेस्ट कैंसर के साथ, ब्रेस्ट कैंसर को सेल्फ एग्जामिनेशन टेक्निक होती है कि जो भी लेडी वो खुद से डिटेक्ट कर सकती है कि अगर जो मुझे ये सिम्टम है तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मैंने वही बोला ना, शुरू में बोला कि जो पेशेंट, जो वुमेन है, वो अपने आप को ध्यान नहीं देती है, जो थोड़ा बहुत दर्द होता है, हो गया, ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, यू हैव टू गो टू डॉक्टर की नहीं, ये सब चीजें मुझे निग्लेक्ट नहीं करनी। Very crucial. Now, madam, my question is, cervical cancer जो है, अगर आप 40 years के बाद वैक्सीन लगाती है तो वो कुछ फर्क नहीं है ना? There's a no use, मतलब एक बुक में जो दिया हुआ है वो यही है कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप तक लगाना चाहिए, और जितनी जल्दी लगाएंगे उतना अच्छा ये काम करेगा। तो मैं तो प्रेफर अपने जो भी पेशेंट आते हैं, मैं उनको यही बोलती हूँ कि पहले तो अपनी बच्चियों को लगाना शुरू करो, या जो आपके रिलेटिव्स में बच्चियां हैं उनको 9 to 15, 9 ईयर्स की हो गई तो स्टार्ट कर दो लगाना। और जो भी जब तक आपके बच्चे हो रहे हैं तब तक तो आपको देना ही देना है। उसके बाद प्रॉपर स्क्रीनिंग के मेथड से बहुत सारी चीजें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। Spike in hormonal issues. What are the lifestyle that are contributing to spike in hormonal issues or other health complications? लाइफस्टाइल, लेट तक जगना ड्यू टू ऑफिस वर्क और समथिंग, और पार्टीज, कि आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सो रहे हो और मॉर्निंग में आप आराम से 8 बजे उठ रहे हो, या जिसके ऑफिस रहते हैं उनको जल्दी उठना पड़ता है बट उनकी जो नींद है वो पूरी नहीं होती है, उसकी वजह से उनको स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे हार्मोनल जो चेंजेस रहते हैं, थायराइड है, पीसीओ है, बहुत सारी चीजें, वो सब स्ट्रेस की वजह से, अगर जो आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी, या फिर आप रात को देर तक सो रहे हो, 2 बजे सो रहे हो और सुबह 10 बजे उठ रहे हो, ये भी आपके जो ब्रेकफास्ट का टाइम, लंच का टाइम और डिनर का टाइम, वो भी आप ठीक नहीं है। प्लस कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो जैसे मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, इवनिंग, या कोई योगा, या जो कोई गेम, क्योंकि जिम में आप 1 महीना 2 महीना जिम गए, उसके बाद फिर आपका ब्रेक हो गया, लेकिन हमें वो चीज करना चाहिए जिससे करने में हमको अच्छा लगे। जैसे डांस करना अच्छा लगता है, डांस करो, जो अच्छा लगे। गेम सबसे अच्छा है, गेम खेलना मुझे लगता है सभी को पसंद आता है। जिम में 1 घंटा वेस्ट लगता है, बहुत मतलब बोर लगने लगता है कि 1 घंटा हम ट्रेडमिल कर रहे हैं, वी आर डूइंग ऑल दिस एक्सरसाइजेस एंड ऑल, वो एक बर्डन और वर्क लगता है। बट जब हम खेलते हैं ना, तो हम उसको बहुत इंजॉय करके खेलते हैं, नहीं हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, we are playing basketball, cricket, everything. So मैं बहुत important lesson learn किया है कि exercise माने not just gym, but जो activity आपको पसंद है वो inculcate करो life में. Lack of sleep or irregular sleep creates so much of hormonal imbalance, or we see a rise in PCOS and all those things. There is a large number of people who work at night. Yes. Do you see an increase in their health risks? Yes. Okay. अब देखोगे ज्यादातर ब्लड प्रेशर एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सभी मतलब अगर जो 10 लोगों का अगर जो हम देखते हैं तो 10 लोगों में से 9 लोग
किसी ना किसी प्रॉब्लम से रहते हैं, या डिप्रेशन में रहेंगे या ओवर स्ट्रेस रहेगा या कुछ ना कुछ इश्यूज रहेगा। ये रहता ही रहता है अगर जो हम प्रॉपर स्लीप नहीं लें। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्लीप के साथ साथ हमारे न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हम 1 घंटा, बोलते हैं ना सेल्फ लव का रीजन ये है कि आप वो करिए जो आपको पसंद है, 1 घंटा अपने लिए। In 24 hours, 1 hour for yourself. यस। From a personal standpoint, Dr. Bina, 2 years, 3 years में बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो गया था, 190 हाँ। by 140। तब थोड़ा डाइट चेंज किया, एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। अभी द ब्लड प्रेशर इज इन कंट्रोल। यस। शायद मुझे आपको पता था तो पहले से एक्सरसाइज करना शुरू करता। एंड आई थॉट कि बिकॉज आई एम स्लिम मैं कभी भी हाई ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता, लेकिन हो गया। सो ऐसा हो गया। हाँ, प्रिवेंटिव मेजर्स हर औरत को क्या जानना चाहिए? अच्छा, क्या क्या करना चाहिए, है ना? तो सबसे पहले तो उसको खुश कैसे रहना है वो सीखना चाहिए। मैन सबसे पहले तो उसको खुद की हेल्थ देखनी है, क्योंकि जब वो हेल्दी रहेगी ना, क्योंकि जो फीमेल होती है ना, फीमेल को ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको अपने को ही देखना है, मतलब उसको उसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट है। अगर जो ऑफिस में भी आप जाओ ना, तो जो फीमेल का वो ज्यादा रहता है कि नहीं उसको पूरा देखना है, क्योंकि उनका जो वो जो सेंस है ना, वो मुझे लगता है कि दे आर मोर स्मार्ट देन मैन। वो टाइप ही। फीमेल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो फीमेल का हेल्थ होगा तभी उसके सारे फैमिली मेंबर्स का भी हेल्थ अच्छा रहेगा। और वो जो चीजें वो खुद करेगी ना, तो उसे लगेगा अरे यार मैं ये डाइट ले रही हूँ, मैं ये चीज, इसमें मल्टीविटामिन है और इसमें ये चीजें है, आयरन है, प्रोटीन है, तो मैं अपनी फैमिली को भी ये चीजें दूंगी। और जो फ्रेंड्स के साथ जो उसके डिस्कशंस रहते हैं वो भी वही चीज रहते हैं। दूसरा, प्रॉपर हेल्थ चेकअप, प्रॉपर स्क्रीनिंग। जैसे पेशेंट की जो एज होती है रिप्रोडक्टिव है, जब आफ्टर मैरिड, तो उसको तो जो स्क्रीनिंग मेथड जो मैंने अभी बताया है कि प्रॉपर कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत गायनेक को कंसल्ट करना है, उस चीज को लाइटली नहीं लेना है। या फिर क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर जो हम गायनेक के पास जाएंगे तो हो सकता है नॉर्मल है तो गायनेक बताएगी आपको जो ड्यूरेशन है, हो सकता है आपको 1 ईयर में बुलाया, 3 ईयर्स या 2 ईयर्स, लेकिन अगर जो लगता है उसको कि नहीं मुझे इसको देना है, तो आपको 3 मंथ्स में, 6 मंथ में ऐसे करके फॉलोअप के लिए बुलाएगी। तो हो सकता है बहुत सारी चीजें आप पहले ही उस चीज से बच सकते हो प्रॉपर, अगर जो आपका चेकअप एंड ऑल ये रहे। ये नहीं सोचना है कि मुझे नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता? आपने जैसे बोला ना, मुझे लगा मुझे तो बीपी नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा इसका रीजन बताओ आपको। हमें बीपी भी हो सकता है, हमें कैंसर भी हो सकता है, हमको डायबिटीज भी हो सकता है, बट हम उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, ये नहीं होने देंगे, क्योंकि उसको हमको प्रिवेंशन करना ही करना है। और ये लगभग सब में ही होता है। स्पेशली आजकल, अभी मैंने मतलब पिछले 1-2 महीने, 2-3 महीने से मैं ये देख रही हूँ कि कोई लेडी गई है प्रॉपर चेकअप के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स को लेके गई है। जैसे हमारे रिलेटिव्स में भी हुआ है, जो अपने फैमिली मेंबर्स को ले गए हैं डॉक्टर्स के पास चेकअप कराने के लिए। उसमें चलो मेरा भी कर लो, पता चलता है एडवांस स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ये नहीं सोचना है कि मुझे नहीं, अभी मेरे ही रिलेटिव्स में हुआ है ये चीज, अरे मुझे तो सब कुछ नहीं नॉर्मल है, क्या उसको थोड़ा बहुत पेन होता था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये तो नॉर्मल है, या लंप है तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो मुझे चक्कर आ रहा है, सो के उठती हूँ तो मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा सिर भारी भारी लगता है, तो मुझे डॉक्टर के पास अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना ही कराना है, शुगर टेस्ट कराना ही कराना है, अपना आई टेस्ट कराना ही कराना है। इस चीज को लाइटली नहीं लेना है, अरे मुझे थोड़ी होगा शुगर, ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ भी हो सकता है। तो यू हैव टू गो टू डॉक्टर्स एंड पूरा कंप्लीट चेकअप है। मतलब मेरा सजेशन ये है कि सभी को करना चाहिए, और ये रूटीनली करना चाहिए, क्योंकि अगर जो हम जाके मॉल में जाते हैं तो मॉल में हमने 10,000 के कपड़े खरीद लिए, जूते खरीद लिए, मतलब तो अगर जो हम अपने हेल्थ पे उतना इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका वो नहीं, ये आपका एक इन्वेस्टमेंट रहता है, ये आपका खर्चा नहीं रहता है, ठीक है हमने अपने ऊपर किया। तो मेरा सजेशन सभी वुमेन्स के लिए है कि जो अपने आप को नहीं, बहुत चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं, लाइटली नहीं लेना है, आपको जानना ही जाना है। आजकल हाइपोथायराइडिज्म बहुत कॉमन है, स्पेशली यंग गर्ल्स में, बच्चों में। आजकल देखो आप थायराइड के पेशेंट है, उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे ही मदर प्रेग्नेंट होती है ना, उसके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस रहता है। आजकल जो मदर वर्किंग भी है लेकिन उसको घर भी संभालना है, एक जो डबल प्रेशर है। और अगर जो पेशेंट, अगर जो कंसीव हो गई, एक उसका भी वो स्ट्रेस है। इसलिए जो बच्चे भी निकल रहे हैं ना, बहुत सारे हार्मोनल इम्बेलेंस, बहुत सारी बीमारियों को लेके निकल रहे हैं। तो अगर जो हम इस टाइम पे भी अपना ध्यान रखेंगे, जो मदर का, और मदर के साथ उस लेडी के साथ साथ लेडी की जो फैमिली है, जो रिलेटिव्स है, वो भी उसका ध्यान दें कि भाई नहीं, अभी उसको स्ट्रेस नहीं देना है, अभी इसका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, इसको बिल्कुल हेल्दी चीजें होना चाहिए। वो अगर जो वो चीजें अगर जो उसने मैनेज कर लिया, तो जो बच्चा भी निकलेगा ना, तो बहुत सारी चीजों से, क्योंकि पहले देखो आप
बच्चों को हाइपोथायराइडिज्म नहीं मिलता था। Yes. पहले बहुत 7-8 बच्चे होते थे, लेकिन सब नॉर्मली ऐसे रहते थे। लेकिन अभी 1 या 2 रहते हैं, लेकिन 1 या 2 में ही प्रॉब्लम्स रहते। तो कहीं ना कहीं ये जो एंटीनेटल जो पीरियड रहता है, अगर जो उसने अपना, पहले औरतें सिर्फ घर में रहती थी, क्या है औरत घर में का भी काम कर रही है, उसको ऑफिस के भी झंझट निपटाने हैं, तो उसको जितने भी रिलेटिव सोशल ये सब चीजें भी मेंटेन करना है, उसकी वजह से वो डबल ट्रिपल प्रेशर में है। तो अगर जो सोसाइटी इस चीज को ध्यान देके कि नहीं इसको ध्यान देना है, इसकी सारी चीजें हैं, तो हो सकता है कि जो हम आगे आने वाला जो बच्चा है उसको फिर हम बहुत सारी चीजों से बचा सकते ड्यूरिंग, अगर जो उस टाइम पीरियड में। और जब डिलीवरी होती है उसके बाद बहुत सारी वुमेन नहीं मुझे ऑफिस वर्क करना है, तो अपना फिर ऑफिस और घर देखना शुरू कर देते हैं। तो वो टाइम पे भी प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर जो उन्होंने नहीं लिया, तो बाद बाकी जो बोन वीकनेस, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्ट्रेस और ये सब भी एंटी मतलब वुमेन की जितने भी स्टेजेस हैं, चाहे वो गर्ल स्टेज हो, चाहे प्यूबर्टी हो, चाहे शादी का हो या मेनोपॉज हो, हर एक स्टेज वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. उसमें अगर जो कोई दूसरा नहीं रख रहा है तो उसको खुद तो अपना ख्याल रखे कि नहीं मुझे ये चीज करना ही करना है। From our talk, I've understood कि we have to prioritize ourselves and our well-being ourselves. Take care of ourselves just the way we take care of our loved ones. Happiness, exercise, prioritizing your health, these are very important. Tests बहुत है, vaccines है, health practices है. What are some of these that we should do across all age? अभी आपने बोला कि girls का age होता है, reproductive age होता है, menopausal age होता है, post-menopausal age होता है। हर category में what are the tests and vaccines that we should be aware of? जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके प्रॉपर वो जो सबके लिए होता है, वो जो वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट जो मतलब हॉस्पिटल जो बताता है कि आपको ये वैक्सीन इतने दे सकते हैं। मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ। गर्ल्स में जैसे ही मेनार्की स्टार्ट होता है तो पहले तो उसको काउंसलिंग फॉर मेंस्ट्रुएशन, मतलब वो स्टार्ट होने से पहले हर स्कूल में होना चाहिए, प्लस सेक्स एजुकेशन हर स्कूल में होना चाहिए। जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया, एक आध स्कूल में गई हूँ, बच्चों लड़के और लड़कियों दोनों को बिठा के मैंने बताया है उनको। तो ये जो एक जो पीयर या जो भी बोलो आप, वो सब चीजें हट जाएंगे जब हम बच्चों को ये बता के रखेंगे। मतलब बेटे को भी बताना है, बेटी को भी बताना है कि ये चीजें होंगी, ये चीजें नॉर्मल है, इसको घबराना नहीं है। और लड़कों के साथ भी सेम चीजें होती है भाई, प्यूबर्टी में उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी। वो सब चीजें अगर जो बिठा के हम सेक्स एजुकेशन एंड ऑल अगर जो हम पहले से ही क्लियर कर लेंगे, फिर उनको बताएंगे तो तुम्हें ऐसा होता है तो ये बताओ, ये ऐसा होता है तो बताओ तुरंत। और उनकी वैक्सीन जैसे मैंने बोला अभी आपको, सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीन है वो 9 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है। Yes. और उसके बाद उसकी जो न्यूट्रिशन वगैरह सब चीजें हम बता सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन में अगर जो कोई प्रॉब्लम होती है वो चीजें हम उसको गाइड कर सकते हैं कि नहीं इसका ये फूड लो या ये चीजें करो, दवाइयों के अलावा भाई दवाई मेडिसिन। फिर वही जो एज ग्रुप है मैरिज का है, जो जैसे ही पेशेंट कंसीव करता है या डिलीवरी का है, या उससे पहले भी काउंसिल करते हैं हम पेशेंट्स को, सभी को बताते हैं। लेकिन डिलीवरी में जैसे ही प्रेगनेंसी का होता है कि अब प्रेग्नेंट है, मेरे पीरियड मिस हुए हैं, तो आपको तभी से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि जो मेडिकेशंस रहते हैं, जो डाइट्स होती है, वो डॉक्टर आपको हर मंथली आपको सब चीजें गाइड करता जाएगा। आपको अब ये करना है, बच्चे के लिए जरूरी है, माँ के लिए जरूरी है। तो अगर जो हमने वो वाला टाइम पीरियड अगर जो प्रॉपर अपना मैनेज कर लिया, जैसे डिलीवरी एक अच्छे सेटअप पे, आजकल तो जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज है वो इतनी अच्छी हो गई है, तो हर गाँव में गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया है कि हर गाँव में डॉक्टर है, हर गाँव में डिलीवरी, हर चीजें हो रही है बहुत प्रॉपरली, बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। अल्ट्रासाउंड मशीन मुझे लगता है हर जगह बड़े सेंटर्स में पहुंचे हुए हैं। बस उसको क्या है, जाना है। वहां ले जाने वाला भी गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा हुआ कि नहीं आशा है, आशा के माध्यम से अब जाओ। लेकिन वो तभी भी बहुत सारे लोग नहीं जाते, अरे हो गया, ऐसा नहीं करना। जैसे 9 मंथ का पीरियड जाता है वैसे डिलीवरी अच्छे सेंटर में होगी, उसके बाद मदर और बच्चे दोनों को ही प्रॉपरली देखना है। फिर जैसे जैसे एज होती है वैसे ही आपका जो रूटीन चेकअप होता है, आप अपना बीपी रेगुलर दिखाते रहो, अपना शुगर रेगुलर दिखाते रहो, अपना यूरिन टेस्ट कराते रहो, आपको कोई अपना आई टेस्ट वगैरह सब कराते रहो, क्योंकि जो भी चीजें आपको शुरू इनिशियल स्टेज पे ही पता चलने चाहिए। वुमेन्स के लिए सबसे पैप्समियर जो मैंने बताया कि लड़कियों मतलब औरतों में कराना चाहिए। आप करा सकते हो साल में एक बार, 2 साल में 3 बार कई, और लगता है उसको हर 3 महीने 6 महीने में डॉक्टर खुद ही बुलाएगी कि आप इतने टाइम पे आओ। ये इंपॉर्टेंट चीज। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन वो खुद बताते हैं। फिर आती है एज मेनोपॉज में। सबसे ज्यादा डर जो औरतें होती है बहुत डिप्रेशन में चले जाती है, क्योंकि बच्चे लगभग बड़े हो रहे हैं, वो अपने आप को लोनली फील करने लग जाती है। प्लस उसी में मेनोपॉज अपने आप को ही एक बड़ा, उस टाइम पीरियड पे अपना ख्याल कैसे रखना है, अपने हेल्थ का चेक, क्योंकि बहुत सारी जो हेल्थ इश्यूज हैं उसी टाइम पीरियड पे स्टार्ट होते हैं। तो प्रॉपर डॉक्टर्स जाके अपने ब्लड टेस्ट वगैरह कराते रहे, अपना बीपी वगैरह दिखाते रहे, अपना जो भी लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहे, ताकि काफी चीजें सॉल्व हो जाए। In short, nothing should be taken lightly. Everything should be handled with knowledge. इसलिए आप जो काम कर रहे हैं is very important, and I so appreciate you for that. I want to come to one thing where women I feel have
too much of stress. We've got, as you mentioned, family to take care of. Mental health बहुत बड़ा issue हो जाता है for women. How do we help ourselves? वो ये चीज सोचना है, मतलब फैमिलीज बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी रहती है कि बहुत सारी चीजें हम जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं। Yes. मेरा जो सजेशन है वो यही है कि अगर मैं अपने आप को भी अगर ये चीज बोलूँ कि अगर जो स्ट्रेस वाली चीजें, जैसे जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो भी मुझे लगती है अच्छी, चाहे मुझे पढ़ना अच्छा लगता हो, गाना सुनना अच्छा लगता हो, डांस करना अच्छा लगता हो, मैं अपने आप को वो जो 1 आवर और 2 आवर्स का अपने लिए खुद के लिए निकालना जो है वो शायद बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर सकता है। दूसरी चीज ये है कि गो फॉर मेडिटेशन एंड योगा। 15 मिनट्स जो नेचुरल जो एयर है और सन, ये सब चीजें रेमेडीज हैं। सन स्पेशली जो व्हाट वी कॉल लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड विंड एनर्जी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फ्रेश एयर में घूमना है थोड़ा अपने लिए 1 घंटा, और बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट, बुक्स, मूवीज देखना है, मूवीज देख, मतलब 1-2 घंटा अगर जो आप अपने लिए निकालते हो तो बहुत सारी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो। और मोस्ट एटलीस्ट 15 to half an hour मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरा भी जो बीच का जो मतलब जो ये फेज होता है ना, जैसे शादी होती है, फिर बच्चे होने लगते हैं, फिर आपका वर्क, आपको फिर कुछ करना भी है, उसमें भी ये है कि नहीं मुझे तो अपने फील्ड में अच्छा भी करना है, तो उधर भी जा रहे हो, फैमिली को भी है, तो वो जो प्रेशर वाला जो टाइम है ना वो यही रहता है। बट फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को मेडिटेशन और मैंने बहुत सारी ये जो मैंने एक्टिविटीज जो मुझे अच्छी लगती है करने, जैसे मैंने बताया आपको कामाख्या, या मुझे मुझे वॉक करना बहुत पसंद है। मतलब मुझे बहुत मजा आती है वॉक करने में, फोन पे बात करते रहो, गाना सुनते रहो, वॉक करना। तो मैंने अपनी वो धीरे धीरे मैंने वो चीजें की, हर चीजें छोड़ के। मुझे पता है बहुत सारी स्ट्रेस है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस सब चीजों को छोड़ के अपने लिए 1 घंटा निकाला मैंने। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे और मेरे साथ जितने भी लोग हैं अभी, जितने भी हम लोग फ्रेंड्स हैं, हम लोगों ने ये तरीका निकाला, और ये बड़ा सबके लिए बड़ा रिलैक्सिंग है ये। ठीक है, 1 घंटा हमने निकाला, उसके बाद हम रेडी हैं और 23 आवर्स सबके सब चीजों के फाइट के लिए। Yes. मैं कुछ शॉकिंग सा बात पता चला कि सम वुमेन होता है ना ओव्यूलेशन डे में जो सर्वाइकल म्यूकस निकल जाता है, तो सम ऑफ देम से कि जब सर्वाइकल म्यूकस निकल जाता है तो उसका गट इश्यू हो जाता है, इसलिए गट का दवाई खाता है। Is that even right? I mean, like, I don't see any relation. No, it's not right. सर्वाइकल जो थिनिंग होती है दैट इंडिकेट कि इस टाइम पे अगर जो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप इस टाइम पे इंटरकोर्स करो तो चांसेस रहते हैं, बिकॉज ओव्यूलेशन हो गया है। तो ओव्यूलेशन जो इंडिकेशन है वो ये कि अब रप्चर होने वाला है, तो आप उस टाइम पे अगर जो इंटरकोर्स करते हैं तो उस टाइम पे चांसेस रहते हैं कंसेप्शन के। और उस टाइम का वाइट डिस्चार्ज जो होता है वो थिन रहता है। वैसे जो टाइम रहता है उसमें थिक डिस्चार्ज जिसको भी होता है तो थोड़ा थिक रहता है, बट दिस टाइम थिन रहता है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करना है। उस टाइम पे क्या पूरे टाइम ही हाइजीन मेंटेन करना है। As such, there is no relation. I don't think so. So there are so many emerging technologies these days in all the field. So are there any emerging technology in your field that can benefit women's health in the future? I told there is a emerging techniques like screening techniques. You ask about. Yes. Screening technique is first for cervical cancer, pap smear और colposcopy। अगर जो हमें लगता है पैप स्मेयर में कुछ लगता है तो उसका HPV कराते हैं। अगर जो लगता है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है तो कॉल्पोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी या कॉल्पोस्कोपी तो प्रिवेंट कर, मतलब वो सब चीजें बता देगा कि किस एरिया, कौन सा एरिया सर्विक्स का ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम में जा सकता है, उसको पहले ही डिटेक्ट कर लेना। और उसके बाद ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है उस एरिया में तो कॉल्पोस्कोपिक के थ्रू हम बायोप्सी लेते हैं उस एरिया का और उसको फिर लैब में भेजते हैं कि ऐसा जो हमें लग रहा है वो ऐसा है क्या, वो चेक होता है। दूसरा, आजकल अल्ट्रासाउंड से बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं, MRI से बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं, जो और एडवांस टेक्निक है। दूसरा, आजकल ब्रेस्ट के लिए भी एक तो सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए भी बोलते हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन करना है तो बहुत सारी चीजें डिटेक्ट हो जाती है, प्लस बहुत सारे ट्यूमर मार्कर हैं वो भी देखते हैं। और दूसरा है कि ब्रेस्ट के लिए मेमोग्राफी है। और एक अभी एक नया लॉन्च हुआ है, मुझे अभी एक जी के लोगों ने बताया, दिखाया भी मुझे, कि उससे ये पता चल जाता है वो बड़े कैंप, अगर हम कैंप्स कर रहे हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं और हमें लगता है कि इसको देखना है, तो वो एक है मशीन है को टच कराते हैं और उससे उनको ये पता चलता है कि किस उसमें ये जाने के चांसेस हैं। और अगर जो ऐसा कोई विमेन डिटेक्ट होती है तो उसको फिर ले जाके फिर मेमोग्राफी या फिर जो भी हमें कराना हो, जो भी टेस्ट वगैरह, फिर वो कराते हैं। When we talk about cervical cancer and the vaccine, for many women that's a little expensive. Are there affordable means? हाँ, एक्सपेंसिव तो है। जैसे जो सबसे सस्ता है वो सर्विवेरिक्स जो इंडिया वाला है, लेकिन उसकी भी कॉस्ट 2000 रुपीज है, अभी तो एक्सपेंसिव है। So for all the women ये करने के लिए मुश्किल हो जाएगा।
फ्री भी नहीं है। हाँ वही है ना, अभी ये गवर्नमेंट प्लान में नहीं आया। बाकी कुछ वैक्सीन जो पहले जो बच्चों को चुकी थी वो तो गवर्नमेंट प्लान में है, ये अभी नहीं आया है। अभी ये प्राइवेट में ही मिलता है, ये गवर्नमेंट में नहीं। लेकिन आप एक चीज कर सकते हो गवर्नमेंट में जाके, ये जो स्क्रीनिंग्स होती है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती है वहाँ पे। ओके। वो उसका कोई चार्ज नहीं रहता है। VIA होता है। अगर जो कुछ लगता है कि थोड़ा बहुत एरोजन्स है या छाला बोलते हैं जैसे, अगर जो ऐसा कुछ है तो उसके लिए अर्ली ट्रीटमेंट जैसे थर्मल एब्लेशंस, क्रायो, ये सब चीजें भी टेक्निक्स हैं, वो भी गवर्नमेंट में, प्राइवेट नहीं आ सकती तो गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो सब चीजें भी प्रिवेंट करते हैं। यस यस, वैक्सीन फ्री नहीं है लेकिन स्क्रीनिंग्स फ्री है, हम ये बेनिफिट ले सकता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर बीना। दिस हैज बीन अ ग्रेट इंसाइट। वी एट सुबाक आर सो इंडेप्टेड टू यू। Thank you. If you like this video, please send this video to at least 2 people so that they also get the help that you feel they need. Please subscribe to us, like this video, and leave a comment. Thank you so much. God bless.